ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਦੂਸਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ of multiplier ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਇਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ AD0 ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ C+I ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ E0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ Y0 ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਮ Y0 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ AD0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ Y0 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਕੇ AD1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ C+I ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ I। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ AD1 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ E0 ਤੋਂ E1 ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ Y1। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਓਨੇ ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। O ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ, Y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
एग्रीगेट सप्लाई करव 45 डिग्री का है, इसनूं नैशनल इनकम करव भी कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड करव जिहड़ा वाई एक्सिस तो स्टार्ट हो रहा है, AD0 पहला एग्रीगेट डिमांड करव है, ये C प्लस आई, इसनूं थोड़ा जिहा आपां उच्चा बनावांगे। इस वाली पहला एग्रीगेट डिमांड करव है जिहड़ा वो उच्चा बनावांगे तो दूसरा नीवा बनावांगे। तो पहला एग्रीगेट डिमांड ए हो गया, AD0 एग्रीगेट डिमांड करव है जिहदे C प्लस आई है, इक्विलिब्रियम E0 ते है, जिथे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, इत्थे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। हुण इन्वेस्टमेंट दे विच कमी कीती जांदी है, जदों इन्वेस्टमेंट घट जाता है तो उहदे नाल एग्रीगेट डिमांड घट जाती है, इस करके एग्रीगेट डिमांड करव नीचे नूं शिफ्ट हो जाता है। तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट दे विच कमी होने के कारण एग्रीगेट डिमांड करव हो गया AD1, एग्रीगेट डिमांड करव है AD1, ये होना है C प्लस आई प्लस माइनस डेल्टा आई, इनू तुसीं इत्थे भी माइनस डेल्टा आई लिख सकते हो, इत्थे भी इसनूं आपां माइनस डेल्टा आई लिखता। इन्वेस्टमेंट दे विच जिन्नी कमी कीती जाती है उस दे नाल एग्रीगेट डिमांड दे विच कमी आ जाती है। एग्रीगेट डिमांड की कमी होने करके इक्विलिब्रियम है जिहड़ा पहला वाले इक्विलिब्रियम के खब्बे पासे नूं शिफ्ट हो गया, लैफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। नवा इक्विलिब्रियम है जिहड़ा वो हैगा E1। E1 पहला वाले इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इनकम का लेवल है Y0, इस एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग इनकम लेवल है Y0। नवे डिमांड करव के अकॉर्डिंग AD1 के अकॉर्डिंग जदों इन्वेस्टमेंट के विच कमी हुई है उदों इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिहड़ा E1 है, इस करके हुण इनकम का लेवल घट के हो गया Y1। इनकम के विच कमी आई है, इन्वेस्टमेंट इन्नी कमी आउण नाल इन्वेस्टमेंट के विच कमी आउण नाल एग्रीगेट डिमांड के विच इन्नी कमी आई है, इस करके इनकम के विच भी इन्नी कमी आई है। इनकम डिक्रीज हो गई है, ये उन्नी डिक्रीज हो गई है जिन्नी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। इस तरह नाल मल्टीप्लायर फॉरवर्ड वर्किंग भी करता है तो बैकवर्ड वर्किंग भी करता है। मल्टीप्लायर दोनों तरह के काम करता है। जदों इन्वेस्टमेंट नूं वधाया जाता है तो उदों मल्टीप्लायर इनकम नूं वधा दिंदा है, जदों इन्वेस्टमेंट नूं घटाया जाता है तो उदों मल्टीप्लायर प्रभाव कारण इनकम दे विच कमी आ जाती है। ये जिहड़ा आपां दोने प्रोसैस कीती है ये स्टैटिक मल्टीप्लायर की प्रोसैस है। स्टैटिक मल्टीप्लायर वो मल्टीप्लायर हुंदा है जदों टाइम नूं इग्नोर किया जाता है, जदों टाइम नूं नहीं कंसीडर नहीं किया जाता तो उसनूं आपां स्टैटिक मल्टीप्लायर कहने आ। स्टैटिक मल्टीप्लायर दे विच की हुंदा है कि जिहड़े वेले इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज आया उस वेले इनकम दे विच चेंज आया। इन्वेस्टमेंट तो इनकम नूं चेंज होने वेले कोई टाइम लैग नहीं पाया गया, टाइम नहीं लग्या। उस टाइम जिहड़े टाइम दे विच इनकम इन्वेस्टमेंट चेंज किया गया उस टाइम इनकम चेंज आ गया, उस टाइम ही कंजम्पशन दे विच चेंज आ गया। सारे इक्को वेले हो गए, सारे चेंज है जिहड़े इक्को वेले हो गए। जिहड़े वेले इन्वेस्टमेंट चेंज होया उस वेले इनकम चेंज हो गई, उस वेले कंजम्पशन चेंज हो गया। इस तरह इसनूं स्टैटिक मल्टीप्लायर कहा जाता है जिहदे च टाइम नूं इग्नोर किया जाता है, टाइम नूं कंसीडर नहीं किया जाता। तो दूजा मल्टीप्लायर है जिहड़ा वो हैगा डायनामिक मल्टीप्लायर। हाँ जी, हुण है डायनामिक मल्टीप्लायर, ये सी स्टैटिक मल्टीप्लायर। हुण आपां पढ़ांगे डायनामिक मल्टीप्लायर। डायनामिक मल्टीप्लायर की प्रोसैस पढ़ांगे हुण आपां। इहदे च आपां फॉरवर्ड वर्किंग पढ़ांगे। इसकी फॉरवर्ड वर्किंग दे विच की हैगा कि जदों इन्वेस्टमेंट नूं चेंज किया जाता है तो उहदे नाल इनकम भी चेंज हुंदी है, जदों इन्वेस्टमेंट नूं वधाया जाता है उदों इनकम भी चेंज हुंदी है, उन्नी चेंज हुंदी है जिन्नी मल्टीप्लायर की वैल्यू हुंदी है। पर ये उस वेले उन्नी नहीं हो जाती इनकम जिन्नी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। इस इनकम नूं वधन च टाइम लगता है। जिवें मान लो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है, इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज किया 10 करोड़ का, तो आमदन दे विच 20 करोड़ का वाधा होना है। पर यह 20 करोड़ का वाधा उस वेले नहीं होंदा जदों इन्वेस्टमेंट दे विच वाधा किया जाता है। भी आमदन नूं 20 करोड़ होने वास्ते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, ਜਾਂ कुछ पीरियड आ ਜਿਹੜੇ टाइम ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ। तो इसनूं कहना डायनामिक मल्टीप्लायर जदों टाइम नूं कंसीडर किया जाता है।
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ, ਇਹ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। पहला एग्रीगेट डिमांड करो AD0 C प्लस आई, इक्विलिब्रियम है E 0 पॉइंट पे, इनकम का लेवल इसके अकॉर्डिंग है Y0 जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। एक्स एक्सिस से अपन लिया इनकम लेवल ते वाई एक्सिस से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ते सेविंग को शो किया। जो इन्वेस्टमेंट के विच वाधा किया जाता है तो उस एग्रीगेट डिमांड करव शिफ्ट होकर ऊपर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होके AD1 हो जाता है। AD1 के विच हुण है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। नवा इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे है। जब इन्वेस्टमेंट के विच इन्ना चेंज किया जाता है तो एग्रीगेट डिमांड AD1 हो जाती है। नवा इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 पे। इनकम का लेवल है Y1 पर इनकम लेवल इन्ना होने वास्ते काफ़ी लंबा टाइम लगता है। आप देखते हैं कितना लंबा टाइम लगता है। जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है पहले राउंड के विच इनकम का उन्ना वाधा इन्ना वाधा होता है। इस करव तो आप एक लाइन लावांगे जी एग्रीगेट सप्लाई करव नूं टच करूगी तो पहले राउंड के विच इनकम च वाधा होता है Y2। टोटल पूरा वाधा जो इनकम का होना है Y0 तो Y1 पर Y0 तो सीधा Y1 तक वाधा नहीं होता। Y0 तो पहला Y2 तक वाधा होगा। हुण इस इनकम के नाल कंजम्पशन के विच इन्ना वाधा होगा। आपां एग्रीगेट डिमांड करो तो पता लगूगा। इतों आप इनकम करो तो एग्रीगेट डिमांड करो वाल नूं मुड़ांगे। इतों हुण इन्ना वाधा जिहड़ा कंजम्पशन च होया इस कंजम्पशन के वाधे नाल अगे जाके फिर इनकम के विच वाधा होगा। एग्रीगेट डिमांड करो तो आपां नूं पता लगूगा। इस एग्रीगेट डिमांड करो तो एग्रीगेट सप्लाई करो में शिफ्ट करांगे तो फिर इन्ना आमदन के विच वाधा होगा। हुण इनकम का वाधा है Y3। इनकम के विच इन्ना वाधा हो गया। पहले राउंड च इन्ना वाधा होया Y0 तो Y2, दूजे राउंड च Y2 तो Y3 का वाधा होया। हुण इहदी आमदन के नाल अगे जाके कंजम्पशन फिर वधूगा जिहड़ा आपको एग्रीगेट डिमांड करो तो पता लगूगा। इधरले पासे आपां नूं जिहड़ा शो हो रहा है ये कंजम्पशन का वाधा हो रहा है। ये कंजम्पशन कंजम्पशन का वाधा है, ये भी कंजम्पशन का वाधा है जिहड़ा एग्रीगेट डिमांड करव नूं टच कर रहा है। हुण इस एग्रीगेट डिमांड करव नूं एग्रीगेट सप्लाई करव नूं जावांगे तो फिर इनकम के विच वाधा हो जाऊगा Y4। इनकम का वाधा हो गया Y4 ये Y1। इनकम च इन्ना वाधा होया। हाँ ये इनकम का वाधा होंदा रहूगा जदों तक इत्थे ना पहुँच गए जब Y1 लेवल के उत्ते ना पहुँच गए। पहला वाधा ज़्यादा होंदा इनकम का फिर घटन लग जाता है। उदों तक ये प्रोसैस चलती रहूगी जदों तक ये वाधा होना रुक ना जाऊगा। इत्थे जाके ये वाधा है रुक जूगा। इत्थे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जूगी। तो हुण इस तो आपां नूं ये पता लग रहा डायनामिक मल्टीप्लायर तो कि जदों टाइम नूं कंसीडर किया जाता है तो उदों मल्टीप्लायर काम करता है। उदों भी आमदन दे विच उन्ना वाधा होंदा है जिन्नी मल्टीप्लायर की वैल्यू है उन्ने गुणा वाधा होंदा जिन्नी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। पर यह वाधा इक्को वेले नहीं होंदा। इन्ना आमदन नूं Y0 तो Y1 तक पहुँचण च काफ़ी पीरियड लग जाता है ਜਾਂ टाइम के काफ़ी राउंड पूरे करने पैंदे हैं फिर जाके आमदन दे विच वाधा हुंदा है। तो यह डायनामिक मल्टीप्लायर यदि बैकवर्ड प्रोसैस भी इस तरह की है। वो आप पहला एग्रीगेट डिमांड करव उपर बनावांगे फिर दूजा डिमांड करव है जिहड़ा नीवा बनावांगे जिहदे च इन्वेस्टमेंट नूं घटाया जाऊगा। तो इनकम है जिहड़ी इक्को वेले नहीं घट जूगी। इनकम नूं घटन च काफ़ी राउंड लग जाएंगे। यह है बैकवर्ड प्रोसैस ऑफ मल्टीप्लायर। स्टैटिक मल्टीप्लायर दे विच टाइम नूं इग्नोर किया जाता है। डायनामिक मल्टीप्लायर दे विच टाइम नूं कंसीडर किया जाता है। इसनूं तुसीं ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।